Jai Hind, aspirants. I hope you all are preparing well for the upcoming CDS, NDA, CAPF, and FCAT examinations. Now, in this Power Pack series, we have already finished Polity Lecture 1, and this lecture we are going to conduct 10 more questions of polity. Now, those who want to save time can watch this at 1.5x or 2x speed. All right. So let us start with this session now. In this session, I have included questions from Maharashtra PCS Mains 2023 and also from IS prelims, which I think are useful for your CAPF as well as CDS examinations. Okay, this is introduction about me. We have already discussed it in the previous video. Now let us start with question number one. Now let us read the first question. If you see, they have asked us to consider the statements about constituent assembly. Now immediately see what they have asked. Select the incorrect statement. Now ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि incorrect question उन्होंने हमें incorrect statement पूछा है. So if you see there is only one statement which is incorrect. Now definitely यहाँ उसमें से कुछ तो missing है. Now let us see whether we can solve it using our knowledge or whether we need to use certain tricks for this particular question. Now, if you see, Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1949. This is correct. We know because this is given in Lakshmikant. Lakshmikant is very important book for us, right? So Lakshmikant आप सभी लोग पढ़ते तो ये लक्ष्मीकांत में दिया है. It adopted the national flag on 22 July 1947. Yes, it is very much correct. You know, it is the statement which is given in Lakshmikant. Third, Constituent Assembly adopted the national anthem on January 24, 1950. This is also correct. This statement is also correct. Now, talking about the third one, the Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1949. अरे 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रेडी नहीं हुआ था, राइट? अगर हम बात करें इधर क्या होना चाहिए था 1950, तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा है तो डी. अभी इसके थोड़ी डिटेल में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी अगर हम बात करें तो ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑन 11th of December 1946. 11 दिसंबर 1946 को ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on 24th of Jan 1950. In the comment section you are going to tell me who was his opposition candidate. उस समय जब ये opposition मतलब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनके खिलाफ कौन सा कैंडिडेट खड़े थे? So this is the question. Please mention it in the कमेंट बॉक्स. और दूसरी थिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो उस समय हु वाज द स्पीकर एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इट वाज जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर. ही वाज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियाज लोकसभा, जीवी मावलनकर. अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो आपको पता होगा ही was a very instrumental leader in the freedom struggle of India. 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस, जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. दूसरी चीज, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में अंडर जवाहरलाल नेहरू, उस समय ही वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन दैट कैबिनेट एज वेल. सो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements about right to property is false? Now सबसे पहले let us see what knowledge we have about right to property. राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हमें ये पता है कि इट वाज पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल आर्टिकल 31 एंड देन मोरारजी देसाई ने 44th अमेंडमेंट ऐड करवाई थी इन द ईयर 1978 एंड वी ऑल नो दैट आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज प्लेस्ड इन पार्ट 12 आर्टिकल 300A. सो इट्स प्रेजेंट स्टेटस वी ऑल नो इट इज अ लीगल राइट और यू कैन से इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, राइट? सो इतना नॉलेज हमें है एंड वी ऑल्सो नो, अगर आपको इन डिटेल स्टडी होगी तो यू माइट बी नोइंग दैट 19(1) में जो सबसेट में आर्टिकल्स थे उसमें से F वाला आर्टिकल वाज आल्सो राइट टू प्रॉपर्टी. लेट अस सी वेदर व्हाट वी कैन सॉल्व दिस. इज फॉल्स पूछा है तो गलत स्टेटमेंट पूछा. फर्स्ट सर्कल दिस. By omitting Article 19(1)(f) and 31 of the Indian Constitution by the 44th Amendment Act, the right to property has been deleted. ये सही है. Provision in the Article 31(1) has been deleted by the 44th. Yes and yes. वो 300A में this also correct. 300A is in chapter 3. Okay, I don't know which chapter. I definitely know it is not part 21, so this is wrong. It is part 12. We all know finance, property, contracts, and suits. The right to property is considered not only a constitutional or statutory right, but also human right. Yes, so which is false. So definitely statement number 3 is false. Right? तो ये हमें पता है. Moving forward to the next question. Which of the following DPSPs mentioned in the Indian Constitution are correctly matched?
अभी हमने लास्ट जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें भी सॉ दैट डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बिहार पीसीएस में पूछा था कि जो डीपीएसपी है ये हमने कहाँ से लिया था, तो उस समय वी सॉ दैट दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स कवर्ड आर 36 to 51. Then we have classified them into Gandhian, socialistic and liberal principles. Now they have asked us कि which of the following articles are correctly matched. तो correctly matched हमें ढूंढना है. Okay, Article 42, right to humane conditions of work and maternity relief. Yeah, this is correct. You know, one thing I will ask you to do is Part 3, Fundamental Rights, Part 4, DPSP, and Part 4A, Fundamental Duties. Learn it. Learn all the articles. You should learn it. This is the philosophical part of the Constitution, and you should by heart it. Article 43, Develop Cottage Industries. Now, ये will just question mark क्योंकि वो I am assuming कि in depth नहीं पढ़ा होगा, but we'll just see. Article 50 to separate judiciary from the executive. Everyone knows that this is correct. Now definitely A and C तो correct है, तो ये option eliminate हो जाएगा. Now we don't know about B, so 50-50 में आए हैं. Now let us see what is the correct answer. The correct answer is ABC. तो इस सेशन से भी we are going to see Article 43 in detail. तो if you see Article 43 की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स ऐसा हेडिंग है, बट इफ यू रीड इट इन डिटेल व्हाट यू विल सी, द स्टेट shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agriculture, industrial, or otherwise, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life. This is also important. So, decent standard of life, इसके बारे में भी Article 43 बात करता है. And full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. And you see this highlighted part. And in particular, the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. So if you see cottage industries, तो ये गांधी जी की एक फिलोसॉफी रही है. सो दिस यू कैन कॉल इट एज दिस पार्ट एज गांधीन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो आर्टिकल 43 इन डिटेल हमने पढ़ा है, तो याद रखने की कोशिश कीजिए. डीपीएसपी में की अगर बात करें तो 36 इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 is what certain applications of the principles contained in this part. 38 में क्या है, state to secure social order for the welfare of people, ऐसा कुछ लिखा है. 39 is certain principles of policy to be followed by the state. 40 is what organization of village panchayats. 41 is what right to work to education, right. 42 is what अभी देखा हमने maternity relief, human conditions. 43 just now we saw living wage etc for workers. 44 UCC. 45 education, that is 0 to 6 years के बच्चों के लिए state shall make for early childhood care. State shall do certain things. तो ये जो है ये याद करो. फिर उसके बाद 46 जो है, 47, 48, I'll just quickly write down, 49, 50, 51. तो 49 talks about monuments of national importance, उसका प्रोटेक्शन करना है. 50 talks about separation of judiciary from executive. 51 talks about promotion of international peace and security. 48 talks about agriculture and animal husbandry. 48A talks about environment. 47 talks about standard of nutrition, and 46 talks about SCs and STs, right. तो ये हमें याद रखना है. Moving forward to the next question. Which of the following words have been mentioned in the list of fundamental duties of the Indian Constitution? Now, in this question, what is in news? फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या पता है? आर्टिकल इज 51A. क्या ये ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था? नो, दिस वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. व्हाट डू वी नो? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, राइट. ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? दैट वाज द स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट. स्वर्ण सिंह कमेटी. फिर उसके बाद 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, एजुकेशन, राइट. सो ये फंडामेंटल ड्यूटी वाली है. तो 51A ए से लेके कहाँ तक है? के तक है. अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से. अभी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मिलेंगे? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. ओके. तो इफ यू सी कौन से वर्ड्स हमारे इसमें मेंशन किए गए हैं ऐसा पूछा है. तो लेट अस सी एंथम, एनिमल, यूनिटी, फेडरल स्ट्रक्चर, साइंटिफिक टेम्पर, हेरिटेज बिल्डिंग्स. ना अगर आपने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो देयर इज दिस वर्ड मेंशन दैट द वर्ड फेडरल हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो फेडरल ये वर्ड का जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ. तो डी बस एलिमिनेट करना है हमें. यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट डी. एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आंसर पे आए, दैट इज ACE. व्हाट इज ए? नेशनल एंथम के बारे में जिक्र है, यस, वेरी गुड है. एनिमल के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है. यूनिटी के बारे में है. साइंटिफिक
टेम्पर के बारे में है बट हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, राइट? सो ACE इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें। फंडामेंटल ड्यूटीज, यस यू हैव टू लर्न इट। ऑल राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी CSE प्रीलिम्स 2021, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में राइट टू प्राइवेसी जिक्र करता है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो दिस आर्टिकल 21। नाउ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन बिकॉज आपको पता होगा आर्टिकल 21 इज इन न्यूज, ठीक है? एक चीज याद रखना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों फंडामेंटल राइट्स है। एंड आर्टिकल 21 एंड 14 काफी ज्यादा न्यूज में है फिलहाल। क्यों न्यूज में? यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 दिन पुरानी न्यूज है। राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, पार्ट ऑफ राइट्स टू लाइफ एंड इक्वालिटी। तो राइट्स टू लाइफ इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 का पार्ट है आपका राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इज जजमेंट, उन्होंने ये रूल किया है। तो थोड़ा सा डिटेल में इस न्यूज को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इफ यू सी on right to clean environment, the court said, so this is talking about the Supreme Court, without a clean environment which is stable and unimpacted by the vagaries of climate change, the right to life is not fully realized. The right to health, which is a part of right to life under Article 21, is impacted due to factors such as what? Air pollution, shifts in vector-borne diseases, rising temperatures, shortages in food supplies वगैरह वगैरह। तो ये देखो एंड में उन्होंने बताया कि the inability of undeserved communities to adapt to climate change or cope with its effects violates the right to life under Article 21 and under Article 14, right to equality। तो ये जो है जस्ट याद रखना कि द सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है? तो जस्ट इसके बारे में भी पढ़ के जाना, हो सकता है कि CAPF में या एपकैट में इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन CSE प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, the a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates which one of the following articles? Now simple सा question है, अगर कोई कानून, legislation यानी law, act, अगर कोई कानून पास किया गया जिससे हमारे डेमोक्रेसी के 3 ब्रांचेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ऐसा कोई कानून है जिससे एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेशन को अनकंट्रोलेबल पावर्स मिलेंगे, तो वो किस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा? नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। नाउ दिस इज अ वेरी अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है? अगर आर्टिकल्स देखें तो UCC 44 इज व्हाट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसकी कतई बात नहीं हो रही है। 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। 28 वो रिलीजन में आता है, सो इसकी भी बात नहीं हो रही। 14 व्हाट इज 14, राइट टू इक्वालिटी। तो डेफिनेटली अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अनकंट्रोलेबल पावर्स मिले तो क्या वायोलेट होगा? राइट टू इक्वालिटी। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच जिसमें यू नीड टू थिंक अ बिट, बट आई बिलीव इट वाज इजी क्वेश्चन। सो एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन CAPF एंड CDS इन द अपकमिंग ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप के बारे में। आपको पता होगा सिटीजनशिप, व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा CAA जो है हाल फिलहाल में लागू हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो दैट इज वाई सिटीजनशिप जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5 to 11 आर्टिकल्स हमारे सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यस, भारत में रहते हो तो एक ही भारतीय नागरिकत्व है, देयर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप। ओके, अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट। तो अगर इंडिया की बात हो रही है तो हमें पता है सिटीजन बाय बर्थ नहीं, अगर भारत के सिटीजन हो तो आप बन सकते हो। तो आप सिटीजन चाहे बर्थ से बनो, रजिस्ट्रेशन से बनो, किसी भी वे से बनो। इफ यू सी US में एंड इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, हेड ऑफ द स्टेट बनना है, तो US में यू शुड बी बॉर्न इन US, वेदर इन बट इन इंडिया यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप सिटीजन बाय बर्थ बनो या बाय रजिस्ट्रेशन बनो या बाय नेचुरलाइजेशन बनो, किसी भी वे से बनो, सिटीजन हो तो यू आर एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड गलत है, करेक्ट पूछा है तो दिस एंड दिस गया, तो डेफिनेटली वन इज करेक्ट। नाउ आई हैव टू रीड 3। नाउ इफ यू सी इसमें भी एक कीवर्ड है, राइट? ये कीवर्ड है, आई एम सर्कलिंग दिस। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैन यू सी कीवर्ड? कीवर्ड, तो ये कीवर्ड है, एलिमिनेट करो, दिस इज करेक्ट। तो सिंपल सोचो कि अगर कोई फॉरेनर है, अगर उसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, तो देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस अंडर विच उसकी सिटीजनशिप वापस ली जाएगी।
तो कंडीशंस है, अगर वो 7 साल कंटिन्यूसली भारत से बाहर रहा या फिर सिटीजनशिप लेने के 5 साल बाद 5 साल बाद वो किसी अन्य देश में इम्प्रिजन हुआ 2 साल के लिए, या फिर ये पता चला सरकार को इसने जो सिटीजनशिप ली है बाय फ्रॉड मीन्स ली है, और इफ ही एक्सप्रेसेस डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दीज आर सर्टन कंडीशंस अंडर विच उसका भारतीय नागरिकत्व निकाला जा सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। नाउ दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपने डीपीएसपी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 38 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफिकली उसमें सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? द स्टेट शैल डू समथिंग टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, आर्थिक विषमता, राइट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करने के लिए सरकार मेजर्स लेंगी। द स्टेट शैल डू दिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये सीधा डीपीएसपी को वायोलेट करता है, राइट, डीपीएसपी। तो द करेक्ट आंसर इज बी, डीपीएसपी। इसलिए आई वाज टेलिंग यू कि जो पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 4A है, लर्न इट। आने वाले कुछ सालों में फॉर सीडीएस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से डिटेल में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स, डिटेल में डिटेल्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो रीड, अभी सिर्फ 14 राइट टू इक्वालिटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से काम नहीं चलेगा, उसके नीचे अंडर जो सब क्लॉज है ना वो भी पढ़ो, बिकॉज नाउ द एग्जाम्स डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। ऑल राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले आर्टिकल 38 जो मैंने अभी बताया था, उसका जिक्र किया था, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर ये आया तो आपका काम हल्का हो जाए। इफ यू सी द स्टेट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल? द स्टेट शैल सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें ये सब लिखा है। इसमें सी द सेकंड क्लॉज आई वाज टॉकिंग, 38 सब क्लॉज 2, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities वगैरह वगैरह, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन 1950? चलो ये क्वेश्चन जो है ये आया है प्रियम्बल से। प्रियम्बल याद करो, एक मार्क सिक्योर करो, किसी भी एग्जाम में भारत के प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो इफ यू टॉक अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल स्टेट्स द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड द डेट, राइट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? नेचर, फिलहाल हमारा नेचर क्या है? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ दिस इज आफ्टर व्हाट यू कैन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। अगर उसकी पहली बात करें, उसके पहले की बात करें 1950 में, यू नो ये वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो उसके पहले हमारा जो नेचर था ऑफ इंडियन पॉलिटी वाज सोवेरियन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक, बहुत से लोगों को रिपब्लिक का मीनिंग नहीं पता। आई टेल यू, रिपब्लिक मींस व्हाट? हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। सो एक चीज याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर करता है ना। इससे बेसिक चीज याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देश को कैसे चलाना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर ये बुक नहीं होती तो सरकार देश को कैसे भी चला सकती थी, विच मीन सरकार का जो दायरा है उसको लिमिट किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन में। जस्ट बेसिक है, स्कूल में जो कैलेंडर होता है आपका या कॉलेज में, उसमें रूल्स होते हैं, राइट। देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर इन एनी इंस्टीट्यूशन। अगर ये रूल बुक होती नहीं तो आप, यू वुड हैव बीन फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। So similarly, if constitution would not have been there, the government of the day would have been free to do whatever they wanted, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिट होता है, उसकी पावर्स लिमिट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ना इफ यू सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से तो और कम हुई है, विच मीन सरकार कुछ भी कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिमिटेड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इन दिस सेशन हमने 10 क्वेश्चंस की है ऑफ पॉलिटी। दिस वाज द सेकंड सेशन ऑफ आवर सीरीज। एक और सेशन आएगा जिसमें और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी करंट के नोट्स शेयर किए हैं। आई हैव आल्सो शेयर्ड द पीपीटीज ऑफ करंट अफेयर्स। दूसरी चीज, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाना अभी फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड आई हैव जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल में मैंने लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस डाले हैं उसमें, फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स देश भर से। भारत में जितने भी एग्जाम्स है, फिर चाहे वो बिहार पीसीएस हो, महाराष्ट्र पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी हो, या फिर सेट एग्जाम हो अलग अलग स्टेट्स के, बी इट दी आईएएस प्रीलिम्स,
या फिर एनी अदर एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, डिफेंस के तो है ही है, बाकी एग्जाम्स के भी है, बिकॉज मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड डिफेंस एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल आने वाले कई सालों में बढ़ने वाली है, तो उसके लिए इफ यू प्रैक्टिस more and more, our success in the coming years would be guaranteed. Okay, with this we'll stop here, we'll meet in the next session.